સુરત શહેરમાં તડખાટ મચાવનાર ચીકલીગેર ગેંગના 3 આરોપી પકડાયા। દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં ઇકો 4-વ્હીલર કારની ચોરી કરી જ્વેલર્સની દુકાનોને ટાર્ગેટ કરી અસંખ્ય ગરફોડ ચોરીને અંજામ આપનાર રીઢા ચીકલીગેર ગેંગના મુખ્ય આરોપી તેમજ અન્ય 2 સાગરીતોને સુરતની ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે, જેમની પાસેથી 1.5 કિલો સોનું અને રોકડ રૂપિયા મળીને કુલ 1 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। આ તમામ આરોપીઓને મુંબઈ, ભરૂચ અને ખંભાત ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। 1.5 મહિના અગાઉ આ ગેંગ દ્વારા સુરતના ગોરધોડ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી જ્વેલર્સની મોટી દુકાનને નિશાને બનાવીને કરોડો રૂપિયાની ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સુરતના ગોરધોડ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી ઓર્નામેન્ટ જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં 1.5 મહિના અગાઉ અજાણ્યા તસ્કરો દ્વારા દુકાનનો 17 તોડી સોનાના તેમજ ચાંદીના દાગીના મળીને કુલ રૂપિયા 1 કરોડ 20 લાખની ચોરીને અંજામ આપી આરોપી ફરાર થઈ ગયા હતા। આ ઘટના બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી અને આરોપીઓ સુધી પહોંચાડવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી। મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે આરોપીઓ દ્વારા ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો તે પહેલા તસ્કરો દ્વારા ડીવીઆરની ચોરી કરવામાં આવી હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો મળીને 80 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન ગુનામાં વપરાયેલા GJ6 PG4362 નંબરવાળી 4-વ્હીલર કાર બિનવારસી હાલતમાં વડોદરાના વડોદરામાં પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી મળી આવી હતી। પોલીસ તપાસ દરમિયાન આ કારની વડોદરાના ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી થોડા સમય પહેલા ચોરી કરવામાં આવી હતી, જેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તથા ટેકનિકલ સર્વેલન્સની ટીમની મદદ લેવામાં આવી અને તે દરમિયાન જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી કે આરોપી સસપાલસિંહ પાપા મુંબઈના થાણા વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે, જેને કારણે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઓપરેશન પાર પાડીને મુખ્ય આરોપી સસપાલસિંહને ઝડપી પાડ્યો છે, જેની પાસેથી રોકડા રૂપિયા 3 લાખ કબજે કરવામાં આવ્યા। આ સાથોસાથ ભરૂચ LCB પોલીસની મદદ લઈને આરોપી કરનારસિંહને ઝડપી પાડી રોકડા રૂપિયા 3.5 લાખ કબજે કરવામાં આવ્યા। આ ઉપરાંત પોલીસે આણંદ જિલ્લાના ખંભાતમાંથી આરોપી શેરુસિંહ સિકલીગરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો। આરોપીની કડકાઈથી પૂછપરછ કરતા જણાવ્યું કે પોલીસે સોનાની લગડી અને સોનાના ઘરેણા મળીને કુલ 1.5 કિલોગ્રામ જેટલો સોનાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। પોલીસે આરોપીઓની કડક પૂછપરછ હાથ ધરી ત્યારે અન્ય 6 જેટલી ગરફોડ ચોરીના ગુનાઓ ઉકેલવામાં પણ સફળતા મળી। આરોપીઓની જ્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે જણાવ્યું કે સસપાલસિંહ ઉર્ફે પાપા તેના બનેવી શેરુસિંહ તથા અન્ય 2 સાગરીતોને આ ગરફોડ ચોરી કરવા માટે કાઉ કરતા શેરુસિંહે પોતાના માસીના દીકરા કરનાલસિંહને સંપર્ક કરીને ચોરી કરવા માટે પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો હતો। સસપાલસિંહ દ્વારા ગોરધોડ જ્વેલર્સની દુકાનની 3 દિવસ સુધી 4-વ્હીલરની કારમાં રેકી કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ આ ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો। બ્યુરો રિપોર્ટ, डेली इंडिया टीवी, सूरत। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी FIR में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 PI क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 PSI के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी, तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। भरूच की भी LCB ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके मुद्दामाल का कहाँ रखा था और चोरी? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी
और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुनाह दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घर फोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहाँ इनको चोरी करनी है या घर फोड़ करनी है वहाँ से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घर फोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घर फोड़ करते थे। सर, ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए, ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? नहीं, इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुनाह हैं, करीब जैसे 30 जैसे गुनाह पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुनाह हैं, और तीसरे के ऊपर कितने गुनाह हैं ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है, और हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम, और किसने और इसका जो मुद्दा माल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर, पूरा मुद्दा माल सोनी को दे दिया था या कहीं छुपाया भी है? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है, और जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीज़ें चोरी हुई थी, सोने का भी था और चांदी का भी था, तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था, तो कैश इनके पास से मिला है। लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है वो सब सोनी के थ्रू मिली है। आरोपी को आरोपी ने तो रेकी की थी, ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसने रेकी की थी, उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरवा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई, 1-2 दिन वो लोग रेकी किए, और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहाँ पर घर फोड़ की। इनका एमओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था कि घर फोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे, तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया था। नहीं, सूरत में नहीं बेचा था, बाहर ही बेचा था। देखिए, आरोपी बनाने का काम इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस स्टेशन का है, जो आईओ हैं वो देखेंगे कि सोनी का कितना रोल था। हम लोगों ने कल रात के बाद से जो ऑपरेशन है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। चोरी से पहले दुकान के अंदर लोग गए थे, मतलब कि जब चालू थी तब देखने के लिए? नहीं, ये लोग बाहर से इन्होंने रेकी की थी, रेकी अच्छे से की थी। तो हम लोगों को इसमें इनपुट ऐसे मिला कि जब ये घर फोड़ हो गई, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले उसमें एक इको गाड़ी दिखाई दी। कुछ दिनों बाद वही इको गाड़ी बरनामा पुलिस स्टेशन के एरिया में बड़ौदा में बिनवारसी हालत में मिली। जब वहाँ पर और फर्दर इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये गाड़ी गोरवा पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी 3-4 दिन पहले, और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने कहा, टावर लोकेशंस वगैरह की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, इन दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल रहा, और हम लोग सेटिस्फैक्टरली इनको कल आज अर्ली मॉर्निंग उठा पाए, और उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन कर पाए हैं उसमें ये रिकवरी हुई है। 1.5 महीने बाद